Hello, welcome to Odeon Learning. My name is Jaggendra Das. I am your math teacher. So our topic for today is simple equation. Before coming to this chapter, we need to know some terms that involve in this chapter. So first is algebraic expression. First term here is called algebraic expression. What is an algebraic expression? So by the definition, it is an expression involving constant, variable and some operations like addition, multiplication. We know operations like multiplication, division, subtraction, and what is this constant and variable we will know from next. Okay, so definition is expression that involves some constant, variable and some operations like multiplication, division, addition or subtraction. Then what is variable? ये जो definition हमने देखा वहाँ पे दो यहाँ पे word था, one is constant and one is variable. So what is constant and what is variable we need to know here. So variable is what? Variable is, it is an unknown number. It is an unknown number. Unknown number means we don't know the number. Okay, it is an unknown number which could have a different numerical value. The numerical value of that number we don't know, means it is an unknown number. Okay, it is called a variable. Variable what? Variable, why this name variable? Because it vary. Because it can vary. It can be any number. It can be 2, it can be 3, it can be any number, root 3, minus 3 or minus 4. Okay, so it is represented by what? It is represented by different letter like X, Y, A, B, etc. Means it can be M, it can be L, it can be N. Okay, it can be represented by any letter. It can be X, it can be Y. Frequently we use X and Y, but not mandatory. It can be any letter. Okay, so that is variable. By the definition हम अभी example में भी जाएंगे. Okay, so next is equation. Okay, equation what? Equation is a condition on a variable where two expressions are equal. Equations means हम एक equal sign यहाँ पे देंगे, यहाँ इधर. अगर दो expressions है, left में एक expression है, right में एक expression. One expression is in the left, one expression is in the right, and middle में क्या है? Equal sign है. तो total here, total is an equation, right? And ये expression क्या है? Expression जो हमने पढ़ा यहाँ पे algebraic expression. Algebraic expression means it involves some constant, some variables. Okay, so first expression here is 5x plus 7. Our example was 5x plus 7 is equal to root 2. Okay, so there are two expressions here. In every equation there are two expressions. First expression is the left hand side expression and second is the right hand side expression. First expression is what? 5x plus 7. Okay, it is our first expression, and in this expression what is variable and what is constant? Okay, let's say 7 here is variable or constant. The value of 7 is always 7. It cannot be 6, it cannot be 4, it cannot be any number. 7 is always 7. We cannot write any number in place of 7 here. So 7 is our what? Constant. And variable what is what? We can change the value or it can vary. So here you can see x. X here is our variable. X here is our variable. And in this expression, how many terms are there? If I can say this expression, there are two terms. One is 5x here. 5x is one term, 7 is another term. The two terms 5x and 7, and both these terms are involving some constant and variable. Okay, like 7 is always constant, but 5x, the value of 5x is depending upon the value of x. Okay, so if I say x is equal to 2, we don't know the value of x. It can be any number. Okay, x can be 2, x can be 3, x can be 4, x can be minus 3. X कोई भी number हो सकता है. We don't know the value of x here. Okay, so by changing the value of x, the
term 5x can vary. Okay, so we don't know the value of 5x, right, but we know the value of 7, that is always 7, right. So here x is variable and 7 is constant. Okay, अब एक डाउट आता होगा कि 5 क्या है, यहाँ पे 7 हो गया हमारा कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल, 5 क्या है, 5 जो है वो वेरिएबल के साथ है, देखो 5x वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, x इज और वेरिएबल, एंड 5 होगा जो वेरिएबल के साथ है, इसको हम बोलेंगे क्या, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट. ओके, 5 इज और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज x, कोएफिशिएंट ऑफ x. 5 is our coefficient and coefficient of what, now that variable which is x. Okay, let's go to our slide. Here 5x plus 7 is equal to root 2. Okay, so हमने this expression, a expression की बात कर ली. Now second expression here is root 2 and we know the root 2 इज ऑलवेज रूट 2. रूट 2 के वैल्यू हमेशा रूट 2 ही रहेगा. रूट 2 के वैल्यू 2 नहीं हो जाएगा, रूट 2 के वैल्यू रूट 3 नहीं हो जाएगा, राइट. सो रूट 2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो बोथ एक्सप्रेशन, वन इज 5x plus 7 and another one is root 2. Both expressions involving some constant and variable. Here x is our variable and 5 is the coefficient of x, and 7 and root 2 both are what, both are constant, right. Clear? Okay, so next slide. So next is what is equation. So an equation is a mathematical statement that shows the equality of two expressions. If इसका मतलब क्या है, equality of two expression, one expression is this, another one expression is this, बीच में एक equal sign दे देंगे तो equation हो जाएगा, right. If I say वो पिछले वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x plus 7 is equal to root 2. It is an equation. Why? Because equation का जो definition है, mathematical statement that shows equality of two expression. Two expression, this is equality, right. So it is, so total क्या हो जाएगा, एक equation हो जाएगा, because that involves two equation and बीच में एक equal sign है, तो क्या हो जाएगा, equation हो जाएगा. It is simple statement है यहाँ पर. An equation is a mathematical statement that shows the equality of two expression. Two expression का equality हो जाएगा total equation, and it consists of two sides separated by an equal sign. Equal sign बीच में एक होगा, जो मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है. The expressions on the left side is called left hand side. दिस इज इक्वल साइन, इक्वल साइन के लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन होगा एंड राइट में एक एक्सप्रेशन होगा. लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन होगा हम क्या बोलेंगे उसको ना, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, एंड राइट साइड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन. ओके, शॉर्टकट में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को LHS, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या होता है, RHS. R मीन्स राइट, H मीन्स हैंड, S मीन्स साइड. ओके, सो LHS होगा लेफ्ट में, RHS होगा राइट में. यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया था 5x plus 7 is equal to root 2. Here the left hand side expression is 5x plus 7 and the right expression is root 2, right. This 5x plus 7 here is LHS, left hand side expression, and right hand side expression that is root 2. Root 2 is RHS. ओके, वेरी सिंपल. LHS एंड RHS, लेफ्ट में जो होगा उसको हम LHS बोलेंगे, राइट में जो होगा उसको हम RHS बोलेंगे. जो होगा मतलब जो एक्सप्रेशन होगा. ओके, ठीक है. सो लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम. एग्जाम्पल यहाँ पे एक है, यहाँ पे द गोल ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमने पढ़ा क्या है, मतलब एक इक्वल साइन होगा, लेफ्ट साइड में कुछ एक्सप्रेशन होगा, राइट साइड में कुछ एक्सप्रेशन होगा. एक्सप्रेशन मतलब वो कुछ वेरिएबल होगा, कुछ
कांस्टेंट होगा, राइट. एंड द गोल इज व्हाट? द गोल ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द इक्वेशन ट्रू, राइट. इफ आई से it is an equation, left hand side expression is 3x plus 7 and right hand side expression is 16, okay. And if I say we need to solve the equation, solve means we need to find the values of the variables, value of the variables. Here the variable is x, we don't know the value of x, okay. So x is variable. So हमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब इस x की वैल्यू हमें निकालना है. व्हाट इज द x वैल्यू ऑफ x? वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x हियर. इफ द वैल्यू ऑफ x, इट कैन बी एनी नंबर, ओके. x कैन बी 2, x कैन बी 3, एनी नंबर. बट x की कौन सी वैल्यू के लिए द इक्वेशन मेक द इक्वेशन ट्रू. ट्रू मतलब क्या है? ट्रू मतलब x को हम क्या लेंगे सो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे इक्वल सिंबल है ना, इक्वल सिंबल का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ओके. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 3x प्लस 7 है एंड राइट हैंड साइड में क्या है? 16 है. तो x की कौन सी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल हो जाएगा एंड वही वैल्यू होगा हमारा solution of this equation, right. तो x can be any number, x can be 1, x can be 2, x can be 3. If I say x is equal to 1, let's say example was 3x plus 7 is equal to 16. We need to solve the equation. Solve means we need to find the value of the variable. Variable here is x. X is here is our variable. We need to find the value of x, right. So x can be any number. X is variable, variable can be any number. X is equal to let me say x is equal to what? 1. X is equal to 1. So left hand side expression is, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? x की जगह 1 पुट करके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? 3x प्लस 7. देखते हैं x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, ठीक है. 3x मतलब 3 इंटू एक्स, 3x मतलब 3 इंटू एक्स, ओके. 3 इंटू एक्स एंड दिस इज प्लस 7, राइट. सो दिस इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया था यहाँ पे? 1, राइट. 3 इंटू 1 प्लस 7. दिस इज 3 इंटू 1 इज व्हाट? 3 एंड 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 इज 10. सो हमारा जो LHS है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसका वैल्यू क्या आ गया? 10. तो यहाँ पे देखो RHS क्या है? 16 है. एंड वी नो 10 इज नॉट इज इक्वल टू 16. 10 एंड 16 दो इक्वल होगा? नहीं होगा. 10 इज नॉट इज इक्वल टू 16. सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट आवर आंसर, इज नॉट आवर आंसर. व्हाई? Because for x is equal to 1, this left hand side expression is not equal to the right hand side expression. अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम ऐसे कुछ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज द solution of our equation. Let me take suppose 3. Suppose let me take x is equal to 3. x is equal to 3. So जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3x प्लस 7. 3x प्लस 7. 3x प्लस 7 मीन्स 3 इंटू एक्स प्लस 7. 3 इंटू एक्स प्लस 7, ओके. तो x का वैल्यू हमने क्या लिया है यहाँ पे? x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 प्लस 7. अच्छा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9. 9 प्लस 7 दैट इज 16. 9 प्लस 7 इज 16. एंड RHS में क्या है? देखो RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन क्या है? 16 है. तो यहाँ पे देखो अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू 3, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जा रहा है. सो हम क्या बोलेंगे? दैट x इज इक्वल टू 3 इज आवर सॉल्यूशन.
is our solution to this equation, right? ओके, सो हम थोड़ा एलाबोरेट करके ये पढ़ेंगे। तो मतलब सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, हम ये यहाँ पे पता चल गया हमें। सॉल्यूशन का मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हमें निकालना है। वेरिएबल मतलब जो अननोन नंबर है, यहाँ पे अननोन नंबर x है। ओके, तो ये अननोन नंबर की वैल्यू हम निकालना है। कैसे वैल्यू निकालेंगे? जो LHS एंड RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू के लिए x की जो वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, वही होगा हमारा क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो रिटन हियर, सेम थिंग is written here, that goal of solving an equation means to find the value of the variable that makes the equation true. Equation true means LHS is equal to RHS. Okay, example हमने ये समझा दिया आपको। The task is to find the value of x. Okay, the task is to find the value of x. X is the variable here. Okay, that satisfy the equation means LHS is equal to RHS जो हमने बोला आपको, मेकिंग बोथ साइड्स इक्वल, राइट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वन ऑफ द एक्सप्रेशंस मस्ट हैव ए वेरिएबल। हाँ, तो ये सब कंडीशन है इक्वेशन के लिए, ये सब कंडीशन है। कंडीशन मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव ए वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा। ओके, तो एक्सप्रेशन वो लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन होता है, राइट साइड में एक्सप्रेशन होता है। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, अनदर वन इज राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, एंड बोथ साइड में से एक साइड में एटलीस्ट एक साइड में से वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव ए वेरिएबल, एक वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, right? If I see our previous example, 3x plus 7 is equal to 16, here this LHS, this left hand side expression contain a variable, a variable that is x। अगर यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं होता, अगर ये लिखा होता है यहाँ पे 3 plus 7 is equal to 16 or something like that, where no variable was present, so that cannot be a equation। Okay, equation means there must be a variable in an equation, there must be at least one expression containing a variable। दोनों एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल हो सकता है, बट the condition is one expression must have a variable means unknown quantity। Okay, we don't know the value of that quantity, the variable represents an unknown value that we need to find or solve for। Okay, second condition is what, LHS of the equation is equal to the RHS of the equation। तो इक्वल साइन बीच में होगा, इक्वेशन मतलब बीच में एक इक्वल साइन होता है। ओके, इक्वल साइन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ ऐसे एक्स इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 7 के साथ इक्वल है, 7 की वैल्यू एक्स के साथ इक्वल है, ठीक है। तो LHS ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द RHS ऑफ द इक्वेशन। इन एन इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर कनेक्टेड बाय एन equality sign, it means that both sides have equal values, and the equation represents a balance or equality between two expressions। This expression or any expression, or we can say any equation can balance or equality, this is a balance or equality between two expression means left hand side expression and right hand side expression। I hope ये clear हो जाए। So let's go to our next slide। Okay, and the next point is an expression does not have any equality sign, but an equation always have an equality sign। एक्सप्रेशन में हम इक्वल साइन यूज़ नहीं करते, एक्सप्रेशन डजंट कंटेन एनी इक्वलिटी साइन। इफ आई से 3x plus 5 here is an algebraic expression, this expression contains some variable, some constant। okay, and expression मतलब कुछ इक्वल साइन नहीं होता है, बट इक्वेशन ऑलवेज हैज़ एन इक्वलिटी साइन। इक्वेशन मतलब इक्वल साइन आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर इक्वेशन ले लेंगे हम तो इक्वल साइन आ जाएगा। सो वही लिखा है यहाँ पे, एन एक्सप्रेशन is a mathematical phase that can contain constants, variable
एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। कांस्टेंट वेरिएबल तो समझ में आ गया। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। हमने देखा यहाँ पे 3x + 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है 3 × x एंड एडिशन हुआ है प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फर्स्ट तो मल्टीप्लाई हुआ है 3 and x एंड ऐड हुआ है क्या, 3x के साथ 5 ऐड हुआ है, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इन्वॉल्व है एक इक्वेशन में। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन भी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, हाउएवर एन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एनी इक्वलिटी साइन। एक्सप्रेशन में जैसे यहाँ पे हमने समझा आपको, इक्वलिटी साइन नहीं होता है। ऑन द अदर्स हैंड एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट that shows that two expressions are equal. Equation means is a statement. Equation is a statement that shows, क्या हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि that two expressions are equal. If I say 3x + 5 = 12, 3x + 5 क्या था, एक एक्सप्रेशन था, लेकिन हम इक्वल टू 12 कर देंगे अगर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन शोज व्हाट, दिस 3x + 5 expression and 12 here is an another expression, both are what, equal। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फोर्थ कंडीशन देखेंगे हम। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ़ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द एक्सप्रेशंस फ्रॉम LHS to RHS और वाइस वर्सा, द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या है, इन एन इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन on both sides can be interchanged without affecting the equality। इसका मतलब हम एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको। If I say 3x + 5 = 12, it is an equation। ओके, सो ये क्या है, यहाँ पे LHS है, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, एंड 12 क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा कि फास्ट में 12 लिखूंगा, ये फास्ट एक्सप्रेशन को मतलब RHS को हम LHS में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड LHS को RHS में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 = LHS क्या है, 3x + 5, तो 12 = 3x + 5। तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इट इज़ एन इक्वेशन एंड इट इज़ एन इक्वेशन। दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे LHS ये RHS हो गया इधर, एंड यहाँ पे RHS ये LHS हो गया। ओके, वही लिखा है यहाँ पे। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो पोजीशन ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम LHS to RHS और वाइस वर्सा, LHS को RHS कर देंगे या फिर RHS को LHS कर देंगे, तो इक्वेशन रिमेन्स सेम। तो ये जो इक्वेशन है एंड ये जो इक्वेशन है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं हो गया। दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है एंड ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है सेम ही आएगा। सॉल्यूशन को छोड़ो, ये इक्वेशन ही सेम है। दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ आर सेम। अगर हम LHS को RHS में ले लेंगे एंड RHS को LHS में ले आएंगे। ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें पूछेगा एग्जाम में तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ कंडीशन क्या है, कंडीशन तो नहीं, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इंटरचेंजिंग LHS एंड RHS, जो मैंने पहले आई ही समझा दिया आपको, फिर से यहाँ पे लिखा है। कंसिडर द इक्वेशन क्या है, 5x + 7 = 2। इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन 5x + 7 लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड 2 here is right hand side expression. If we interchange these two, okay, 5x + 7 and 2, the equation remains the same। इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज करेंगे मतलब 5x + 7 जो यहाँ पे LHS में है, इधर RHS को ले आएंगे, एंड 2 जो यहाँ पे RHS में है, इधर LHS में ले आएंगे। ठीक है, 5x + 7 = 2, यहाँ पे LHS क्या था, 5x + 7। ये इक्वेशन में क्या है, 5x + 7 RHS में है। ओके, इधर 2 क्या है, RHS में है, इधर 2 क्या है, LHS में है। ओके, तो RHS हो गया LHS, LHS हो गया RHS। सो द थिंग इज द इक्वेशंस रिमेन्स द सेम। दो इक्वेशन क्या है, सेम है यहाँ पे। ठीक है, बोथ द इक्वेशंस आर व्हाट, यू कैन से बोथ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट।
both the equations are equivalent and represent the same relationship between the expression, same relationship between the expression, मतलब लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन राइट वाला एक्सप्रेशन, लेफ्ट एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेशन में जो रिलेशनशिप है वो चेंज नहीं होगा, ओके ठीक है। दे हेल्प अस फाइंड अननोन वैल्यूज एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, ओके। वो क्या करते हैं, अननोन वैल्यू को फाइंड करने में हमें हेल्प करते हैं। एंड यही तो है मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन को, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, कि सॉल्व मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ओके। वेरिएबल की जो वैल्यू है हमें वही निकालना है, ठीक है। सॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन, कैसे सॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशंस ऑन द एक्सप्रेशंस ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वल साइन, इक्वल साइन के जो आइदर साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सो दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज फाउंड, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज फाउंड, दिस इज आवर मेन गोल, आवर गोल इज व्हाट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ओके। सो आवर गोल इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस, विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल लेके तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है 2x + 4 = 10, इजिकल टू साइन यहाँ पे है, इजिकल टू साइन, सो दिस 2x + 5 हियर इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, दिस 10 इज आवर RHS, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, राइट। तो बोथ एक्सप्रेशन हो गया, एक LHS हो गया, एक RHS हो गया। तो सॉल्व करेंगे मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टू फाइंड हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो टू परफॉर्म सेम ऑपरेशन ऑन द आइदर साइड, ओके। तो सेम ऑपरेशन मतलब क्या करेंगे, अभी देखो 2x + 4 = 10 हियर गिवन, एंड यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड में क्या है, लेफ्ट साइड में +4 है। तो +4 को अगर हमें हटाना है तो क्या करेंगे, -4 कर देंगे, ठीक है। +4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4, एंड सेम ऑपरेशन ऑन द आइदर साइड, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में हम -4 कर रहे हैं, राइट साइड में भी -4 करेंगे, ठीक है। -4 मतलब सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ LHS एंड RHS, बोथ LHS एंड RHS में से हम क्या करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर 2x + 4 से -4 कर दिया, यहाँ पे 10 से -4 कर दिया, तो -4 क्यों किया, तो देखते हैं क्या मतलब बना इसका। 2x देखो यहाँ पे +4 - 4, 4 - 4 दैट इज 0, 4 - 4 दैट इज 0, तो ओनली व्हाट रिमेन्स 2x, राइट। And here 10 - 4, we know 10 - 4 is 6, 10 - 4 is 6, 10 - 4 is what, 6। so यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन था हमारा 2x + 4 = 10, ये हो गया क्या, 2x = 6, तो ये 4 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ज़्यादा इजी हो जाएगा हमें x की वैल्यू निकालने में से, ठीक है। तो 2x = 6, तो फिर क्या करेंगे, हमें x चाहिए, तो यहाँ पे देखो x के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना यहाँ पे, 2x मतलब 2 × x, तो क्या करेंगे, 2x डिवाइड कर देंगे LHS में से, 2x / 2 एंड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन इन बोथ साइड, ओके। तो 2x / 2, तो 6 में भी डिवाइड कर देंगे, क्या 2 डिवाइड कर देंगे, 6 / 2, ओके। देखो यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग बोथ LHS एंड RHS by 2, और डिवाइड कर देंगे 2x / 2, 2x / 2 इज व्हाट, x, 2x / 2 इज x, एंड 6 / 2 इज व्हाट, 3, ओके। तो देखो 2x / 2, 2x 2 × x डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, सिर्फ x, एंड 6 / 2 इज 3, तो x = क्या हो गया हमारा,
द वैल्यू ऑफ x इज 3. ओके, सो हियर x की वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 3. x की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया. ठीक है, तो सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन. इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आ गया x इज 3, राइट. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्या है नेक्स्ट है मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन. कुछ मेथड हम सीखेंगे तो कैसे सॉल्व करना है. मेथड 1 क्या है, परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन द एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वल साइन so that the value of the variable is found without disturbing the balance operations involving addition, subtraction, multiplication and division on both sides. Okay, हम बोथ साइड में क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन करेंगे. जो भी ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में अगर मैं 2 ऐड किया, राइट साइड में भी हमें 2 ऐड करना है. ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में हमें सपोज आई डिवाइड 100 इन लेफ्ट साइड, राइट साइड में भी हमें 100 डिवाइड करना है. ठीक है, जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में करना है वही ऑपरेशन राइट साइड में भी करना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. x + 2 = 6. तो क्या करना है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है. इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे +2 है तो क्या करेंगे -2 करेंगे. ठीक है, पहले तो -2 करेंगे. एंड राइट साइड में क्या है 6 है, 6 में भी -2 करेंगे. लेफ्ट में क्या हमने क्या किया, -2 किया, राइट में भी -2 किया. तो देखते हैं क्या होता है, x + 2 - 2. ठीक है, 2 - 2 दैट इज 0, 2 - 2 इज 0. तो सिर्फ क्या बच गया x. ठीक है, 6 - 2 इज 4. तो लेफ्ट में क्या बचा x एंड राइट में क्या हुआ 4. तो x = क्या आ गया हमारा 4 आ गया. ठीक है, x = क्या आ गया 4 आ गया. सो इट इज आवर सॉल्यूशन. x = 4 is our solution. Solution of what? Solution of this equation. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड 1. मेथड 1 में हमने क्या सीखा, मेथड 1 में हमने सीखा कि जो ऑपरेशन हमें करना है, जो भी ऐड करना है, जो भी सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी मल्टीप्लाई करना है, कि जो भी डिवाइड करना है, और लेफ्ट साइड में अगर करेंगे, जो भी ऑपरेशन लेफ्ट साइड में करेंगे वही ऑपरेशन क्या करना है हमें राइट साइड में भी करना है, लाइक दिस एग्जाम्पल. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज मेथड 2. मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है ट्रांसपोजिंग इट इन्वॉल्व्स, ट्रांसपोज मतलब क्या, ट्रांसपोजिंग इट इन्वॉल्व्स मूविंग द टर्म टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. हमें क्या करना है, तो मूविंग द टर्म टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन, जो टर्म है हमें एक की साइड में लाना है उनको, ऑफ द इक्वेशन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल when remove, यहाँ पे R है, when remove from one side to another they change their sign. When move from one side to another, when move from one side to another, अगर एक साइड में से अनदर साइड को मूव करना है, अगर कोई भी अगर टर्म को, तो क्या करेंगे, दे चेंज देयर साइन. उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं. ये कुछ समझ में नहीं आया, आई थिंक एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, ट्रांसपोजिंग फिर से मैं पढ़ देता हूँ. ट्रांसपोजिंग क्या है, मूविंग द टर्म टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अनदर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, अगर x + 2 यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, x + 2 = 6. तो क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है. इक्वेशन हो गया, इक्वेशन में वेरिएबल क्या है x है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है. x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, x के साथ एक +2 है, तो ये +2 अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा हमारे x की वैल्यू आ जाएगा. तो हटा देंगे मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग +2 फ्रॉम LHS टू RHS. +2 क्या है, LHS में है, +2 इज हियर इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले आएंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ला रहे हैं, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को आ रहे हैं, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं. तो ट्रांसपोज +2 फ्रॉम LHS टू RHS, x इज व्हाट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो +2 RHS को चला गया, तो लेफ्ट में क्या बचा, सिर्फ x, एंड RHS को अगर चला गया +2 तो क्या होगा,
दे चेंज द साइन। चेंज द साइन मीन्स अगर 2 यहाँ पे प्लस है, 2 यहाँ पे प्लस है, RHS को चला गया अगर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर प्लस हो जाएगा माइनस, एंड माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस होता तो हो जाता प्लस, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो वो डिवीज़न हो जाता, एंड डिवीज़न अगर होता तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस अगर होता तो लेफ्ट में अगर प्लस है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में अगर माइनस है, राइट में जाएगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो +2 यहाँ पे था, राइट में चला गया तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 6 - 2, तो लेफ्ट में बचा सिर्फ x, एंड राइट में क्या हो जाएगा, 6 - 2 दैट इज़ 4। तो x क्या हो जाएगा, 4। इट इज़ आवर सॉल्यूशन। तो ये भी एक मेथड है ट्रांसपोज करना। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड देखेंगे। मेथड आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। मेथड 2 ही मेथड है। एक तो सेम ऑपरेशन करना है हमें, फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा कि सेम ऑपरेशन करना है लेफ्ट में एंड राइट में, एंड सेकेंड हमने पढ़ा कि ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज अगर करेंगे तो जो लेफ्ट में अगर लेफ्ट में से राइट को ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।